It's time now to start our first workshop session, which will be conducted by Mr. Raghav Upadhyay sir, which will include modules on databases. May I invite my colleague Mrs. Priti Bala Arathya madam from the organizing team to introduce our resource person to our participants. Thank you, Razia ma'am. Good morning and a very hearty welcome to our President of IPS Academy, Architect Mr. Achal Chaudhary, Principal of IPS Academy, Dr. Premlata Gupta, Registrar of IPS Academy, Dr. Sanjay Nagar, Head Department of Biotechnology, Mrs. Pragya Goyal, Coordinator of this workshop, Dr. Sultana Razia, Members of Organizing Committee for this workshop, Dr. Rajesh Khande, Mrs. Bhavita Kohli, Dr. Dipali Shukla, Head of Mathematics Department, Dr. Pradeep Joshi, Head of Chemistry Department, Mrs. Ruchi Srivastav, Head of Physics Department, Dr. Jitendra Tripathi, and dear participants from various places throughout the country. It's a great pleasure for me to introduce our today's speakers for the workshop, Mr. Raghav Upadhyay. He is going to talk about Introduction to Bioinformatics and Protein Sequence Analysis. It's a subject in which we should be deeply interested because it has its application in almost every stream related to biological sciences. Presently, he is working as an assistant professor at Sri Umia Girls College, Mandaleshwar. He is associated with this college since last 10 years and teaching bioinformatics and biotechnology at both UG and PG level. Our speaker had completed his Bachelor of Pharmacy from NRI Institute of Pharmacy, Bhopal. After that, he did Master of Technology in Bioinformatics from School of Computer Science and Information Technology from Devi Ahilya Vishwavidyalaya. Because of his interest in pharmacology, Mr. Raghav has also done his master's degree in pharmacy with specialization in pharmacology from Charak Institute of Pharmacy, Mandaleshwar. As a student, he has also done industrial trainings from various renowned industries like Nicholas Piramal Limited, Pithampur, Just Pharma Indore and Indo-Swift Laboratories Limited, Himachal Pradesh. He had also participated in poster presentation in the National Workshop on Computational Biology and Bioinformatics held at Indian Institute of Technology, Jodhpur. During his tenure, he has attended and presented various research papers in national and international conferences and seminars. He has also participated as a subject expert in International Conference on Sustainable Development of Technology, Science and Pharmacy organized by Ellen City Institute, Indore. He has also delivered lectures and talks as speaker and resource person in different institutes on topics related to computer-aided drug designing and sustainable technology development. His research work has also been published in journals of national and international repute. Today we also have got an opportunity to benefit through his knowledge in the field of bioinformatics. So without taking much time, I would request our speaker, Mr. Raghav Upadhyay, to enlighten our participants through his deep knowledge and expertise in the field of bioinformatics. So may I request Mr. Raghav to commence the first module of workshop. Sir, please. What is bioinformatics? First one, bioinformatics, also known as life science informatics, as a new emerging discipline of advanced science. Pauline Hogweg and Ben Hasper coined it in 1970 to refer to the study of information processes in biotic system. Bioinformatics combines with biology, computer science, information technology, applied mathematics and biostatistics to solve practical problems arising from the management and analysis of biological data. Bioinformatics develops computational tools, softwares and database to generate, collection, classification, acquire, store, organize
retrieve, mining, visualize, analyze and interpret the biological data. Especially in the bioinformatics, the main focus is the central dogma of molecular biology is an explanation of the flow of genetic information within a biological system. It is very important part of central dogma including DNA, RNA and proteins. In central dogma, DNA makes RNA, RNA makes proteins, including processes transcriptions and then translations. It was first stated by Francis Crick in 1957. But involved the analysis of biological data, particularly DNA, RNA and protein sequences including structures. In bioinformatics is an advanced and interdisciplinary field including major research efforts in the field include sequence alignment, gene findings, genome assemblies, genetics of disease, drug design, drug discovery, protein structure alignment, protein structure prediction and prediction of gene expressions including protein-protein interactions PPI, genome-wide association studies, the modeling of evolutions and cell divisions, mitosis and comparative genomics, which are the advanced and innovative research areas. First one, biology bioinformatics combines with computer science, so including some programming languages which are important part of the in bioinformatics specializations, including as a bioinformatics analyst need to know about different softwares or tools to execute them via a pipeline and to filter results, analyze them and extract some useful information, need to have a knowledge of programming languages. In the field of bioinformatics, some commonly used computer languages including Python, including R language, MySQL, PHP, Perl, MATLAB, and they are including with a bioinformatics with BioPython, BioPerl, MATLAB and BioJava. Most of the core tools used for bioinformatics analysis are written in C, C++, Python, Java, Perl and R. Bioinformatics utilizes modern computer science that includes cloud computing, artificial intelligence, pattern recognition, machine learning, simulations, modeling and algorithms used for in silico analysis of biological queries. Important applications in bioinformatics. Most important application is drug design, as the complete sequencing of the human genome has had to unlock the genetic contribution for many diseases. Its applications include drug discovery, including personalized medicines, preventative medicines and gene therapy. The pharmaceutical has moved from the trial and error process of drug discovery to a rational and structure based drug design. Successful and reliable drug design process, the time and cost of developing effective pharmacological agents can be reduced. And right now the process of drug target identification and drug candidate screening can be accelerated, and safer, more effective drugs can be developed based on molecular modeling and simulations, including some stages such as drug target identification, lead compound identification, lead verification, lead optimization and
pharmacokinetic properties are also analyzed in ADMET properties, including such as advanced fields such as biotechnology, alternative energy sources, drug discovery and drug development and drug design, preventive medicines including biofuels, plant modeling, gene therapy, waste cleanup, climate change, stem cell therapy, microbial genome, crop improvement, nutrition quality, bioweapon development, forensic science, veterinary science, antibiotic resistance, evolutionary studies and insect resistance, which are the important specialization in areas and applications about bioinformatics. This is the pic of bioinformatics combinations with phylogenetic studies, omics studies, systems biology, functional annotations, protein structure prediction and sequence alignment with homology modeling. It is a complete chart about bioinformatics, including different advanced research fields such as molecular biology, including biomolecules, macromolecules, genetics, including study about genes and completely set of genes including genomes, including biochemistry, biophysics and evolutionary relationship studies in with the help of bioinformatics, agriculture sciences and mathematical and statistical sciences and pharmaceutical sciences, omics. The main components of bioinformatics is the computer science, including information technology with the help of internet is must, and database management system and computational different types resources such as data mining approaches. So let's start. First one, NCBI database. So all students firstly goes to on Google or NCBI, National Center for Biotechnology Information. NCBI, the National Center for Biotechnology Information, advances science and health by providing access to biomedical and genomic informations. Founded in 1988, the National Center for Biotechnology Information is the world's largest organizations in biological research. Is a part of the United States National Library of Medicine, NLM, a branch of the National Institute of Health, NIH. It is approved and funded by the government of United States. NCBI is now a leading source for public biomedical database software tools for analyzing molecular and genomic data and research in computational biology. So first we are going to on database. This is the web page. This is the web page of NCBI, and including all databases we can type as a biological term such as a disease H1N1. And right now all databases informations comes from a INTRAGE, a G query, global query, and we are going to a button on search. Click on search. The information is generated in National Library of Medicines. Results found in 27 databases about H1N1,
And first one, Interage is a search engine of NCBI including different divisions such as first one literature, second one genes, third one proteins, fourth one genomes, and next clinical and PubChem. These all are present in a Interage search engine including literature. Important part is that PubMed is very important for research areas including some research articles and research papers. Some are different types of research articles. Abstract is present in PubMed. First one, I will show the research paper about anyone. Neuraminidase inhibitor of Gracilia atroviridis. These are the abstract, and abstract including all procedures, all methods and all outcomes are present in a abstract, and the full article is present on a PubMed Central. So, PubMed is a completely a literature about research, about articles and research papers are present in a abstract form, and the full articles are shown in PubMed Central. This is the PubMed Central. It shows the complete research information present in a digital data. It is the complete research article with abstract, with introductions, with materials and methods, with outcomes including sequence analysis, molecular analysis and some other informations and references. So, Interage is a important part of the NCBI search engine. NCBI is maintained by National Library of Medicine and National Institutes of Health, including literatures and some ones genes, proteins, genomes, clinical and PubChem. First one, we are going to a nucleotide sequences, the digital information about nucleotide sequences including a file format influenza A virus. Okay, we can type H1N1 Indore. This is the file format about NCBI including some important informations about the sequence. First one, a locus including some important informations such as a accession number which are designed by characters with digits, and one character including 5 digits with us and 2 character with us 6 digits. Next one, how much base pair are present in a sequence. So, this show 804 base pair are present. Next one, the molecule genetic type, it is a complementary RNA. Next one, molecular structure type is a linear. Next one, a division about sequences, VRL, 3 letter abbreviations are designed in bioinformatics for division. VRL means viral sequences, and this date information including 1 December 2015, it is the database, this database is install this information. Next information is important, definition including influenza A virus is a title or definition, A is a subtype and city name Indore
and sampling number 4181 in year 2015, and subtype is a H1N1. Segment 4, hemagglutinin gene partial CDS. This definition information is very important in any queries about sequencing. Accession number, just like a voter ID number or PAN card number, including also a roll number. So accession number is very important identity about this file format. Version is also a important part, including keywords, source organisms, also including a taxonomic classifications with influenza A virus and viruses, and complete taxonomic division are present in this information. References, including number of bases which are present in a database. Authors is very important part, such as a researcher, such as a scientist, which are stored in a database. Sahu M and Shukla M, someone is. Title, the title is very important, which are published in a research magazines or research articles. Study on influenza in central India, and journal, firstly it is not unpublished in a journal, and next one we are going to translated sequences. This is the important part of sequence. This is a single letter abbreviations, including 20 amino acids, single letters, and then origin. This is the sequence of complete organisms about influenza A virus, including single letter A, T, C and G, adenine, thymine, cytosine and guanine. 4 nucleotide bases are present in a sequence, and then double backslash, the file format is over. This file format is complete information about influenza A virus, and this information is the part of a digital data, a digital file format about organisms. Next one important is that we are using software and tools for sequence alignment, so we can select a FASTA format sequences. This is the FASTA format sequences. It shows in capital letters and can be arranged in a systematically view. This is the complete FASTA format sequence, and the sign is the greater than sign shows, and the definition is present, and this is the FASTA format sequence. Next one, going to a PPT. InterAge, the InterAge Global Query Cross Database Search System is a federated search engine or web portal that allows users to search many discrete health science databases. InterAge is a molecular biology database system that provides integrated access to nucleotide and protein sequence data, generated and genomic mapping information with the gene centered and genomic mapping information, including 3D structure data, PubMed, Medline and more. The system is produced by the National Center for Biotechnology Information and is available via the internet. The website is www.ncbi.nlm.nih
nih.gov/interage. Next one, JanBank. The JanBank sequence database is an open access annotated collection of all publicly available nucleotide sequences and their protein translations. It is produced and maintained by the National Center for Biotechnology Information as part of the International Nucleotide Sequence Database Collaboration INSDC, which comprises the DNA Data Bank of Japan DDBJ, the European Nucleotide Archive ENA and JanBank at NCBI. These three organizations exchange data on a daily basis. JanBank and its collaborators receive sequences produced in laboratories throughout the world from more than many distinct organisms. JanBank, released in 1982 by Walter Gott and Los Alamos National Laboratory in USA, released 242.0 version produced in February 2021, contained over 12 trillion nucleotide bases is more than 2 billion sequences. Some important websites are shown: www.ncbi.nlm.nih.gov/JanBank, and we are going to on internet. This is the file format about NCBI JanBank, and we are going to next on JanBank. This page is show interage, a global query. Some divisions important including literatures, genes, proteins, genomes, clinicals and PubChem. And next, the website ncbi.nlm.nih.gov. Open the web page. This is the web page about NCBI, National Center for Biotechnology Information. It is a complete web page, and we can retrieve informations about any biological term such as a disease or virus or microorganisms, H1N1. Information produced in a interage form, all databases, click search, results found in different types of database including literature, genes, proteins, genomes, clinical and PubChem. 6 different types of divisions including literatures, genes, proteins, genomes, clinical and PubChem. First one, literature. The important part is PubMed. The important part is PubMed. PubMed is a free search engine
accessing primarily the Medline database of references and abstracts on life sciences and biomedical topics. PubMed is a free resource supporting the search and retrieval of biomedical and life sciences literature with the aim of improving health both globally and personally. The PubMed database contains more than 33 million citations and abstracts of biomedical literature such as life science journals and online books. PubMed is completely a digital database. The United States National Library of Medicine at the National Institute of Health maintain this database as part of the InterAge system of information retrieval. This PubMed is released on January 1996. The website is the pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. मैं इसलिए कह रही हूँ कि अनम्यूट करो, अनम्यूट कर दो सबको. The PubMed तो फिर कैसे web page including a research paper मैंने or अभी research हाँ, मैंने abstract. दिया. I will show you. हाँ मतलब मैं तो देख ही रही हूँ, होगा तो मैं बता दूंगी. Any biological research नहीं, सर, तो articles question भी बोल दो. and abstracts are present in a PubMed. In PubMed, abstract information about research is present in a database and complete literature find out. We are going to PubMed Central. PubMed Central, a complete literature with information including abstract, introduction, materials and methods, and results and outcomes and references. PubMed and PubMed Central is very important for research areas. Second one, genomes. Genomes including locus. Such informations are present: accession number, total number of base pairs, molecule, genetic type, molecular, and 18 different types of division. 3-letter abbreviations. VRL means viral and shows the date and month and year. The locus is a basic information about any research information with the sequences. Definition is a title, influenza A virus, and the country and subtype, and a receptor proteins are present in a definition.
Next one, accession number, including with alphabets and digits, such like a roll number or PAN card number. So accession number is the identity about NCBI database. Version shows the version. Some important information: source and source organism, including taxonomic information, are present in a file format. Authors, also researchers or scientists. Then title. The title shows in a journals or magazines. Characterization of the 1918 Spanish influenza virus Neuraminidase. Okay. आप इस डेटाबेस में देख रहे हैं कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इन्फ्लुएंजा ए वायरस से रिलेटेड आपको यहाँ शो हो रही होगी। साथ में जो भी जर्नल है उस जर्नल में पब्लिश हुआ है, ये कौन सी डेट में हुआ है, उसका वर्जन क्या रहा है, कौन से ईयर में हुआ है, वो सभी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो जर्नल में आपको शो हो रही होगी। पबमेड आईडी जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी शो हो रहा है। ये पबमेड आईडी जो है ये कम्प्लीटली डिजिट्स में जनरेट होती हैं। साथ में ऑथर्स को भी लिखने का एक रूल है। सबसे पहले सरनेम लिखा जाता है, देन उसके बाद ऑथर का फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम। टाइटल जो कि रिसर्च मैगजीन्स और रिसर्च आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका एक टाइटल जनरेट किया जाता है और ये टाइटल जर्नल में पब्लिश हुआ है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको ये शो हो रही होगी। एंड देन इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन सीक्वेंसेस जो कि यहाँ पर शो हो रही हैं सिंगल लेटर एब्रीविएशंस में। प्रोटीन सीक्वेंस है ये। एंड लास्ट, ओरिजिन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये 10-10 10 के लेटर्स में अरेंज होती हैं एंड वन स्लॉट जो है वो कम्प्लीटली अराउंड 60 एंड नेक्स्ट 61 to 120 10 के लेटर्स में अरेंज है। और ये जो सीक्वेंस है इसको सीक्वेंसर से आइसोलेट किया गया है, जनरेट किया गया है। एंड डबल बैकस्लैश ये शो कर रहा है कि फाइल फॉर्मेट जो है वो अब ओवर हो चुका है। अब इस फाइल फॉर्मेट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे लिए सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को लेकर के या यूँ कहें कि इस डिजिटल सीक्वेंस का उपयोग डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम ले सकते हैं, सच एज सीक्वेंस अलाइनमेंट। फाइल फॉर्मेट में आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे फास्टा जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट की मदद से जितने भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स और सॉफ्टवेयर पे जब हम एनालिसिस करेंगे तब हमें फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंसेस को लेना होगी जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और इस फास्टा फॉर्मेट में जो भी सीक्वेंस है वो कैपिटल लेटर में अरेंज हो जाती हैं और उसका जो टाइटल है वो इंक्लूड होता है। इस कंप्लीट फास्टा फॉर्मेट की सीक्वेंस को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर हम इसका जो एक्सेशन नंबर है उस एक्सेशन नंबर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये आपका नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल डेटाबेस है, उसका हमने अभी इंटरेज देखा एंड जन बैंक को हमने विजुलाइज करा कि किस तरह से जन बैंक, अगर हम देखें तो जो जन बैंक है उसमें इतना न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस इतने प्रेजेंट हैं कि पूरे वर्ल्ड को डीएनए सीक्वेंस से हम राउंड कर सकते हैं। इतना डीएनए इन डेटाबेसेस में अवेलेबल है डिजिटल फॉर्म में, और ये सभी डिजिटल डेटा जो आज प्रोड्यूस हो रहा है ये सीक्वेंसर की मदद से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आप NCBI के वेब पेज पे जाएंगे तो अभी जो रिसेंटली जो डिसीज़ चल रही है, वायरस जो आया हुआ है SARS-CoV-2, उसका भी डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है एक कंप्लीटली पैकेज है डिजिटल बायोलॉजी का, या यूं कहें कि बायो को कंप्लीटली डिजिटल कर दिया गया है। आगे इसी में जन बैंक और इंटरेज आपने देखा। नेक्स्ट जो है पबमेड, मैंने आपको शो किया था। पबमेड में आपको सभी लिटरेचर आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स शो होंगे, साथ में कंप्लीट रिसर्च आर्टिकल्स अगर आपको पढ़ने हो, देखने हो, तो आप पबमेड सेंट्रल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट जो अब हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस ले रहे हैं वो है EMBL। EMBL का पूरा नाम है द यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, और जो कि एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल डेटाबेस है। एक कंप्लीट INSDC इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन बनाया गया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स कम्युनिटी की ओर से। उसमें 3 अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो इन डेटाबेसेस को एक्सेस कर रही हैं। फर्स्ट वन जो है NCBI, जिसको ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने का काम कर रही है NIH और NLM, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है USA से। सेकेंड वन EMBL जो है ये यूरोप से प्रोड्यूस हो रहा है, स्पेशली यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी से। थर्ड वन हम जो देखेंगे वो है DDBJ, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, जो कि हमारे एशिया का एकमात्र डेटाबेस है जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिलीज़ करते हैं डिजिटल डेटा के रूप में। तो अब हम चलते हैं EMBL पर। आप सबसे पहले EMBL जो है गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। EMBL यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, आपको वेब पेज शो होगा। इस पर क्लिक करते हैं हम, और अब हम EMBL के अंदर आ चुके हैं। यूरोपियन एसोसिएशन जो है उनकी 27 कंट्री मेंबर हैं। जनरली जो EMBL को प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च लैब्स हैं, जो इस डेटाबेस को वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस कर रही हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रही हैं। इसके 6 अलग अलग डिवीज़न हैं जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं। बार्सिलोना, ग्रेनोबल, हैम्बर्ग, heidelberg, हिंगस्टन एंड रोम। हम जिस डेटाबेस को यूज़ में लेंगे वो है EMBL EBI, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो हम रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा भी हम इनको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहूँगा H1N1 से रिलेटेड। टाइप H1N1, सर्च, रिजल्ट्स फाइंड आउट होंगे। इन रिजल्ट्स में आपको एक टेबल में अलग अलग
सोर्स में आपको रिजल्ट शो हो रहे होंगे, जीनोम एंड मेटाजीनोम्स, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, प्रोटीन सीक्वेंसेस, मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जीन एक्सप्रेशंस, डिसीजेस, मॉलिकुलर इंटरेक्शंस, जीन डिसीजेस एंड एसोसिएशंस। ये अलग अलग डिवीज़न है, इनमें हम जा सकते हैं जिनको भी हमें सिलेक्ट करना है। अभी हम फाइल फॉर्मेट देखेंगे कि ये फाइल फॉर्मेट किस तरह से शो होगा। हम ओके, स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, वो मुझे अच्छे से सुन रहे हैं और डेटाबेसेस को अच्छे से दिख रहा है उन्हें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कि हम पहली बार डिजिटल डेटाबेस को देखें, डिजिटल बायोलॉजी को हम एक्सेस करें कि ये डेटाबेस किस तरह से दिखते हैं, इन डेटाबेसेस को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको एक बार फिर से कैसे कर दीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले EMBL EBI पे हम जा रहे हैं, यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। EMBL का वेब पेज आपके सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है EMBL EBI, ये शो हो रहा होगा आप सभी को, हिंगस्टन। ये हमारा मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी डेटाबेस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। यहाँ पर एक टैब दिखा होगा आपको, उस टैब में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जिनसे भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है। सपोज H1N1, एंटर। एक डिवीजन दिख रहा होगा, इस डिवीजन में अलग अलग रिजल्ट्स हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्लिक कर रहे हैं हम उस पर। क्वेरीज आएगी हमारे पास, जैसे फर्स्ट वन आया इन्फ्लुएंजा ए वायरस। सर हाँ सर प्लीज स्लो डाउन लिटिल बिट। अच्छा, स्पीड ज़्यादा जा रही है क्या? ओके, अभी तक आपको पूरा समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से कैसे एक्सेस करना है डेटाबेस को? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। यस सर। ठीक है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस पे क्लिक करें आप। आपने किया क्लिक, इंफॉर्मेशन ओपन हुई होगी, फाइल फॉर्मेट ओपन हुआ होगा। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हमें डेटाबेस को एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। और अभी तक जितना भी लेटेस्ट डेटा है पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का, वो इन डेटाबेसेस में अवेलेबल है। मैंने इसको क्लिक किया, इंफॉर्मेशन जो आएगी मेरे पास ये ENA के फॉर्म में आएगी, जो कि हमारा एक यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चिव, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। ENA दिखा आपको?
ENA दिख रहा है? यस सर। ठीक है, इसी ENA के मदद से हमें स्पेशली फाइल फॉर्मेट जो है वो व्यू होगा। मैं आपको फाइल फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूँ। ENA जब ये इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी तो हम इसके फाइल फॉर्मेट को व्यू कर सकते हैं। ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जो कि आपको शो हो रहा होगा। एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जो आपको शो हो रहा होगा। ये इंफॉर्मेशन सिमिलर है NCBI के। NCBI का जो जनबैंक का फाइल फॉर्मेट हमने देखा था उसी के ये सिमिलर है। वहाँ लोकस में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है, यहाँ पर स्पेशली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन। ये एक्सेशन नंबर वही है जो वहाँ पर था। इसका एक डिज़ाइन किया जाता है, इसे 2 लेटर के साथ 6 डिजिट्स होंगे और अगर 1 लेटर है एब्रीविएशंस में तो 5 डिजिट्स होंगे। सीक्वेंस का वर्जन है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर टाइप है, मॉलिक्यूल का जेनेटिक टाइप है। डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न जो मैंने आपको बताए 18 डिवीज़न्स हैं। ये डिवीज़न्स भी मैं आपको शो कर रहा हूँ जनबैंक की मदद से। जनबैंक में ये डिवीज़न शो किया गया है। जनबैंक पे जा करके, जनबैंक पर जा करके एनोटेटेड सैंपल जीन बैंक रिकॉर्ड में आप जाएं और वहाँ से आप शो कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नीचे की ओर ले जाते हुए। ये जनबैंक के अलग अलग डिवीज़न है। PRI 3 लेटर एब्रीविएशन में प्राइमेट सीक्वेंसेस, ROD रोडेंट सीक्वेंस, MAM अदर मैमेलियन सीक्वेंसेस। ऐसे अलग अलग डिवीज़न है जिनको इन तीनों डेटाबेसेस में शो किया जाएगा। ये डिवीज़न आपको दिख रहे हैं। अभी जो हमने सीक्वेंस को ओपन किया हुआ है वो डिवीज़न है PAT मीन्स पैटेंट। तो ये जो सीक्वेंस है ये पैटेंट सीक्वेंस है विथ VRL वायरल सीक्वेंस, और नंबर ऑफ बेस पेयर हैं वो शो हो रहे होंगे। देन एक्सेशन नंबर जो कि एक आइडेंटिटी है किसी भी डेटाबेस के लिए, कौन सी डेट में ये सबमिट हुआ है, अपडेट कब हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको शो हो रही होगी। डेफिनेशन, कीवर्ड्स, और आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस कंप्लीटली दिख रही होगी आपको। इसमें जितने भी नंबर ऑफ बेस पेयर हैं उसमें से एडेनिन कितने हैं, नंबर ऑफ एडेनिन, नंबर ऑफ साइटोसिन, नंबर ऑफ ग्वानिन एंड नंबर ऑफ थाइमिन, ये आपको शो हो रहे होंगे। ये एक कंप्लीट सीक्वेंस है। ये भी 10-10 के लेटर्स में अरेंज होती हैं।
इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है फास्टा फॉर्मेट। ये तो एक कंप्लीट फाइल फॉर्मेट है, पर सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए फास्टा फॉर्मेट। फास्टा फॉर्मेट में हमारी जो सीक्वेंसेस हैं वो अरेंज होती हैं और उन्हीं सीक्वेंसेस को लेकर के हम रिसर्च के काम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट डेटाबेस आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं DDBJ। नेक्स्ट डेटाबेस जो है वो है DDBJ। आप टाइप कर सकते हैं DDBJ, एंटर करें, टाइप कर सकते हैं DDBJ एंड देन एंटर। DNA डेटा बैंक ऑफ जापान शो हो रहा होगा आपको। एशिया का एकमात्र ये डेटाबेस है और इस DDBJ में शो हो रहा है आप सभी को। ये डेटाबेस DDBJ सभी को शो हो रहा है। Yes, sir. अब इस DDBJ में सर्विसेज में जाइए, सर्विसेज पे क्लिक करिए, एक विंडो ओपन होगा। उस विंडो में अलग अलग डिवीजन दिख रहे होंगे आपको। इन डिवीजन में ARSA करके एक डिवीजन है, ARSA। इस डिवीजन पे आप क्लिक करिए। आप क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो ओपन होगा। यहां भी आप कोई भी बायोलॉजिकल टर्म टाइप करके और सीक्वेंस को आप रिट्रीव कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आप रिट्रीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, H1N1 की ही सीक्वेंस को मैं आपको यहाँ शो करना चाहता हूँ। देन सर्च, टाइप H1N1 एंड सर्च। एक न्यू विंडो में टाइप किया आपने H1N1 एंड सर्च। न्यू विंडो में ओपन होगी एक टेबल। उस टेबल में कंप्लीट एक लिस्ट है, उसमें इंडिविजुअल एक्सेशन नंबर के साथ साथ इंफॉर्मेशन जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को लेकर के, उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को लेकर के वो शो हो रही होगी आपको एक लिस्ट में। उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी एक्सेशन नंबर हैं, डेफिनेशंस हैं, सीक्वेंस का लेंथ दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर टाइप है, ऑर्गेनिज्म का नेम है। आप इसमें जिसको भी लेकर के आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, आप उस पर आप क्लिक करिए। तो इस तरह से ये फाइल फॉर्मेट ओपन होगा। ये जो फाइल फॉर्मेट है ये सिमिलर है जन बैंक NCBI के। यहाँ पर भी सिमिलर इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की गई है। लोकस में वही इंफॉर्मेशन स्टोर है। देन डेफिनेशन, एक्सेशन, वर्जन एंड कंटिन्यू, ऑल इंफॉर्मेशंस जो हैं वो शो हो रही होगी आपको। और सबसे नीचे हम जाएंगे तो कंप्लीट सीक्वेंस का एक फॉर्म है, वो सीक्वेंसेस आपको शो हो रही होगी। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इन डेटाबेस का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क यही है कि हम जिस भी टॉपिक पे रिसर्च का काम कर रहे हैं उस टॉपिक को हम यहाँ पर सर्च करें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। एनालिसिस पार्ट हम अभी लेंगे आगे। अभी मैं आपको फर्स्ट वन डेटाबेसेस शो कर रहा हूँ कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कैसे शो होती है, कैसे हम उन इन्फॉर्मेशंस को रिट्रीव कर सकते हैं। एनालिसिस पार्ट हम आगे देखेंगे। तो ये आपने देखा, ये तीनों जो हैं ये कम्प्लीटली डेटाबेसेस हैं, जिसमें NCBI जन बैंक, DDBJ और EMBL, ये तीन डेटाबेस जो हैं ये अभी हमने देखे।
और फास्टा फॉर्मेट में हमने सीक्वेंस देखा है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में जब हम सीक्वेंस को एनालिसिस करेंगे तो हमें फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस लेनी होगी। ये 3 अलग अलग डेटाबेसेस हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस हैं, और यही डिजिटल इंफॉर्मेशन की मदद से आज हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स में किसी भी रिसर्च फील्ड में आज हम स्टडी कर सकते हैं। ये थे न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस के लिए हम ले रहे हैं स्विस प्रोट। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में 3 अलग अलग डिवीज़न है, या यूँ कहें कि 3 अलग अलग लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स काम करता है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो होती हैं सीक्वेंसेस, सेकेंडरी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो होती हैं स्ट्रक्चर्स, और टर्शरी लेवल पर हम इन सभी को एनालिसिस करके और उनके फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशंस में हमारे पास हो गई हैं सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में फर्स्ट वन अभी हमने डीएनए सीक्वेंस देखा या न्यूक्लियोटाइड बेसेस देखे डेटाबेसेस में जा कर के। अब हम जो नेक्स्ट डेटाबेस देख रहे हैं वो है स्विस प्रोट, जो कि एक प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्वेंस के फॉर्म में आपके पास डीएनए की सीक्वेंस अवेलेबल होगी। सेकेंड, आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी यूनिप्रोट नॉलेज बेस्ड डेटाबेस में या स्विस प्रोट में। और ये एक सर्वर है, एक्सपेसी सर्वर, एक्सपर्ट प्रोटीन एनालिसिस सिस्टम, जहाँ पर यूनिप्रोट, केबी एंड स्विस प्रोट उस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं। एक्सपेसी सर्वर पे आप सभी आ गए। सिंपली आपको टाइप करना है स्विस प्रोट। उस स्विस प्रोट में जाकर के आपको क्लिक करना है यूनिप्रोट केबी स्विस प्रोट। आपको शो हो रहा है? Yes, sir. इस यूनिप्रोट केबी और स्विस प्रोट जो है, इसमें आप प्रोटीन की सीक्वेंसेस को आप ओपन कर सकते हैं। यूनिप्रोट केबी ओपन हुआ, उसके बाद आप क्लिक करें ब्राउज द रिसोर्स वेबसाइट। इस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, यूनिप्रोट में चले जाएंगे। यहाँ यूनिप्रोट में जा करके आप टाइप कर सकते हैं जिस भी बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करनी है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इंसुलिन। इंसुलिन टाइप करके मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरेट होकर के आ जाएगी। एक लिस्ट आएगी टेबल फॉर्म में। इसमें कंडीशंस हैं रिव्यूड एंड अनरिव्यूड सीक्वेंसेस हैं। अनरिव्यूड जो हैं वो कंप्यूटेशनली एनोटेटेड डेटाबेस है, TREMBL दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। एंड स्विस प्रोट जो हैं वो रिव्यूड सीक्वेंसेस हैं, ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस हैं। यहाँ पर इंट्री नेम, प्रोटीन नेम्स, जीन नेम्स, ऑर्गेनिजम्स
लिस्ट में आपको दिख रहे होंगे लेंथ एमिनो एसिड्स की। अब हमें प्रोटीन का सीक्वेंस देखना है फाइल फॉर्मेट में। हम इस पर क्लिक करें, किसी भी क्वेरी पे आप क्लिक कर सकते हैं। एक वेब पेज, न्यू वेब पेज लोड होकर के आएगा। ये इस इंसुलिन प्रोटीन से रिलेटेड उसकी कंप्लीट बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास शो हो रही है। आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको शो हो रहा होगा फॉर्मेट। उस फॉर्मेट में आप क्लिक करेंगे तो व्यू फॉर्मेट में आपको दिखेगा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल फॉर्मेट है स्विस प्रोट का या यूनिप्रोट केबी का वो ओपन होकर के आ जाएगा। ये फाइल फॉर्मेट सिमिलर है EMBL, EBI, ENA जो कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, उसी के सिमिलर है ये फाइल फॉर्मेट। यहाँ पे भी शॉर्ट लेटर एब्रीविएशंस में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया गया है। ID, एक्सेशन नंबर, DT, डेफिनेशन, जीन नेम, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म नेम, रेफरेंस नंबर, ये शो हो रहा होगा आपको फाइल फॉर्मेट। रेफरेंस टाइटल, रेफरेंस ऑथर, और जब हम इसमें नीचे की ओर पहुंचेंगे तो हमें देखने के लिए मिलेगी सीक्वेंस। काफ़ी नीचे है इसमें सीक्वेंस। ये जो आप देख रहे हैं ये अमीनो एसिड्स की कंप्लीट एक सीक्वेंस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इतने अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, मॉलिक्यूलर वेट इतना है, और ये कंप्लीट 10 के लेटर्स में सीक्वेंस अरेंज हो गई है। अब यहाँ पर भी कंडीशन वही रहेगी कि हमें जो सीक्वेंस लेना है, जब हम एनालिसिस पार्ट पे हम पहुँचेंगे तो हमें सीक्वेंसेस को फास्टा फॉर्मेट में लेना होगा। हमें जो सीक्वेंसेस लेनी होगी वो फास्टा फॉर्मेट में लेनी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि व्यू फॉर्मेट में टेक्स्ट में हमने पूरा कंप्लीट फाइल फॉर्मेट विजुलाइज करा, एंड देन नीचे यहाँ दिया हुआ है फास्टा। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक फास्टा फॉर्मेट में हमारा एक कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट होकर के आ जाएगा। ये फास्टा फॉर्मेट में आप सीक्वेंसेस देख पा रहे हैं, सीक्वेंस का एक फॉर्मेट। फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस आप देख पा रहे हैं। ये सिंगल लेटर एब्रीविएशंस हैं एमिनो एसिड्स के, जो कि सीक्वेंसर की मदद से फाइंड आउट किए गए हैं और उसको डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर कर दिया गया है स्विस प्रोट, यूनिप्रोट केबी में। इनका भी एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसके 3 अलग अलग मेंबर हैं। एक PIR है, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, एक स्विस प्रोट खुद है, और एक SIB है, स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है स्विस प्रोट को। और एक है TREMBL जिसको ऑर्गेनाइज और मेंटेन करने का काम कर रही है EBI। तो ये 3 अलग अलग डिविजन्स हैं। इनका भी एक प्रोटीन कोलैबोरेशन बना हुआ है यूनिप्रोट कंसोर्टियम के नाम से, यूनिवर्सल प्रोटीन कंसोर्टियम। ये जो शो हुआ है ये आपका प्रोटीन सीक्वेंस है जिसमें आपने टेक्स्ट फॉर्मेट देखा। इसके बाद फास्टा फॉर्मेट में आपको जब सीक्वेंस चाहिए रहेगी तो आपको फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस फाइंड आउट करना होगा, या उसका एक्सेशन नंबर या उसकी SIB ID। नेक्स्ट स्विस प्रोट के बाद अब मैं ले रहा हूँ PDB, जो कि एक बहुत बड़ा डिजिटल बायोलॉजिकल डेटाबेस है
और ये जो प्रोटीन बैंक डेटा है पीडीबी प्रोटीन डेटा बैंक, ये 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चरल डेटा है जो आपके पास 3 डायमेंशनली विजुलाइज होंगे आपको स्ट्रक्चर्स, और इस डेटा को ऑब्टेन किया गया है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और अदर टेक्निक्स जिनसे उन डेटाबेस को स्टोर किया गया है स्पेशली डेटाबेस में। तो पीडीबी पे अब हम चलते हैं जो कि एक 3D विजुलाइजेशन डेटाबेस है। अभी तक हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स आ रहे थे वो 1 डायमेंशनली थे, बट आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद से आज हमने विजुलाइजेशन को 3 डायमेंशनली और उससे भी अपडेट 4 डायमेंशनली भी आज हम जनरेट कर रहे हैं। पीडीबी एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और ये भी मेंबर है वर्ल्ड वाइड पीडीबी का। आपने टाइप किया पीडीबी टाइप करने के बाद RCSB पीडीबी होम पेज ओपन हुआ। इसकी वेबसाइट है www.rcsb.org। इस पे आप क्लिक करें। पीडीबी पे आप पहुंच गए। Yes sir. पीडीबी पे पहुंचने के बाद उस वेब पेज को आपने ओपन किया। Yes sir. Yes sir. Yes sir. इस वेब पेज को आप शो कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है स्पेशली प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को लेकर के। कंप्लीट नेम है प्रोटीन डेटा बैंक, और यहाँ पर आपको जो भी प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी 3 डायमेंशनली आप उन प्रोटीन्स को विजुलाइज कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स को विजुलाइज कर सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स असेंबलीज को भी विजुलाइज कर सकते हैं। और स्पेशली जो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस डेटाबेस को एक्सेस करके काफ़ी सारा डेटा, डिजिटल डेटा 3 डायमेंशनली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इस डेटाबेस का वेब पेज है। अब इस वेब पेज में हम स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनली देखेंगे। इसमें मॉलिक्यूल जो है वो मैं ले रहा हूँ इंसुलिन। टाइप करके क्लिक करेंगे तो इंसुलिन से रिलेटेड आपके पास न्यू टैब में आपको इन्फॉर्मेशन जनरेट होकर के आएगी। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है, पीडीबी के थ्रू हमारे पास आ रही है। विजुलाइज हो रहा है आपको पीडीबी। ये जो इन्फॉर्मेशन है पीडीबी के बेसिस पे आप किसी भी पीडीबी आईडी पे आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैंने 1H59 पीडीबी आईडी पे क्लिक करा तो ये एक कंप्लीट वेब पेज जो है ये ओपन हो गया है। अब इस पीडीबी के अंदर आपको इस मॉलिक्यूल से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। उस मॉलिक्यूल का नाम, उस मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन, किस ऑर्गेनिज्म से उसको आइसोलेट किया गया है, कोई म्यूटेशंस अगर प्रेजेंट है,
कब ये डिपॉजिटेड हुआ है इस डेटाबेस में, रिलीज कब हुआ है इस डेटाबेस से, कौन कौन उसके ऑथर्स रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। कौन सी मेथड से इसको आइसोलेट किया गया है स्ट्रक्चर को, तो अभी स्पेशली मेथड का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन। रिजोल्यूशन कितना है, आर वैल्यूज कितनी है, उन इंफॉर्मेशन को भी यहाँ पर स्टोर किया गया है। लिटरेचर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल से रिलेटेड अवेलेबल है। पबमेड आपको मैंने पहले बताया था कि पबमेड जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आपका रिसर्च इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होगी, तो ये पबमेड में रिसर्च आर्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं। ये जितने भी डेटाबेसेस हैं, इन सभी डेटाबेस को लिंक किया गया है। जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो सीक्वेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो सीक्वेंस डीएनए का हो या वो सीक्वेंस प्रोटीन का हो, उन सबको एक दूसरे से लिंक किया हुआ है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक ये बहुत बड़ी मतलब बोल सकते हैं एक हेल्प है कि हम किसी भी डेटाबेस पे जा करके हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि पबमेड से भी इसको कनेक्ट किया गया है, तो आप पबमेड से रिलेटेड डेटा को भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। सर आर वैल्यूज क्या होती है? ये रेफरेंस वैल्यूज हैं। ये जनरली हम जो आइसोलेट करेंगे स्ट्रक्चर्स को, उनको लेकर के। अब यहाँ पर आपको मैं ये 3 डायमेंशनली इस स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर रहा हूँ। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ टूल्स हैं, जैसे पाइमॉल है, आप राइट नोट कर सकते हैं पाइमॉल, जेमॉल, पाइमॉल PYMOL, जेमॉल, जावामॉल JMOL, SPDBV, ये कुछ विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं, जिनको आप डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर पे या डेस्कटॉप, जो भी आपका एक्सेस आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स को करना चाहते हैं, जिस भी लैपटॉप में, उसमें इन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के बाद आप उन्हें रन करवाएं, और रन करवाने के बाद आप इनके स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनली विजुलाइज भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम जो सॉफ्टवेयर PDB के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से इसको हम विजुलाइज करेंगे। कर्सर की मदद से, माउस की मदद से कर्सर को आपको राउंड करना है, तो ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनली व्यू होगा आपको। स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, जो हम 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के बाद स्ट्रक्चर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जूम भी आप इसे कर सकते हैं। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर को दूसरे व्यू में अगर देखना चाहूँ, डिफरेंट व्यूअर में, तो यहाँ आप जा सकते हैं JSMOL, जो RCSB PDB के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इस JSMOL पे क्लिक करेंगे तो वही स्ट्रक्चर JSMOL व्यूअर के फॉर्म में आपको शो होगा। अब यहाँ पर आप कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस, स्पेशली स्टाइल को लेकर के, जिससे अलग अलग स्टाइल्स में अगर हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर को व्यू करना है, सपोज कार्टून अभी आपको दिख रहा है, ये विजुअलाइजेशन कार्टून स्टाइल में है। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर को बैकबोन में देखना है तो आप बैकबोन पे क्लिक करिए। अगर आपको स्पेस फिल
के स्टाइल में देखना है तो स्पेस फिल के स्टाइल में आप देख सकते हैं, बॉल एंड स्टिक स्टाइल में आप देख सकते हैं। ओनली फॉर लिगेंड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अगर आपको देखना है, अभी यहाँ पर कोई लिगेंड फॉर्म नहीं है, इंक्लूडिंग लिगेंड्स एंड पॉकेट्स, ट्रेस, रिबन, ये इतने अलग अलग डिवीज़न हैं जिनमें आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप विजुलाइज कर सकते हैं। ये डिवीज़न अलग अलग दिखाने का एक मतलब विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर में ये ज़रूरी है कि अगर हमें प्रोटीन्स की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करना है, इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स की साइट्स को अगर हमें देखनी है, या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम प्रोटीन को एनालिसिस कर रहे हैं, या सपोज़ हमें एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर के एमिनो एसिड्स को आइडेंटिफाई करना है, या हमें फोल्ड्स, टर्न्स, कॉइल शेप अरेंजमेंट्स देखने हो, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स के अरेंजमेंट देखना हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शेड्स के अरेंजमेंट देखने हो, टर्शरी स्ट्रक्चर्स में स्पेशली फोल्ड्स के अरेंजमेंट देखना हो, या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में देखना है कि कितनी साइड चेन्स अरेंज हो रही हैं, वो हम इन अलग अलग स्टाइल्स के फॉर्म में हम एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी दिए हुए हैं जिनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो करने के साथ साथ आप रेनबो, बाय चेन, बाय हाइड्रोफोबिसिटी एंड बाय एमिनो एसिड्स, तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स के अकॉर्डिंग आपको ये कलर कीज़ में अलग अलग दिख रहे होंगे स्ट्रक्चर, और इनमें आपको जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से दिखेगा, रेनबो में कैसा दिखेगा। जनरली ये अलग अलग फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को जब हम एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज़ को एनालिसिस करते हैं, और जनरली जब हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट या ड्रग डिज़ाइन में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें प्रोटीन्स का कोई एक ऐसा मतलब डॉकिंग प्रोसेस है, उस डॉकिंग प्रोसेस में हमें उस पॉइंट को ढूंढना है जहाँ से हमारा जो लिगेंड मॉलिक्यूल है वो इनहिबिट होगा। तो उन पॉकेट्स को हम इन स्टाइल्स और कलर की मदद से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा प्रोटीन जो है वो बाउंड होगा, बाइंड होगा। सरफेस के बेसिस पे भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी मदद से हमें बहुत सारी प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स की 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। 1 डायमेंशनली अगर देखा जाए तो हमें ये कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि किस तरह से ये प्रोटीन है, बट जब हम इसको एक अच्छे एक्सिस में हम घुमा करके देखें, इसे राउंड करके देखें, तो हमें पता लगेगा कि कितने चेन्स में डिवीज़न है, कितनी अलग अलग चेन्स हैं, साइड चेन्स कितनी है, अल्फा हेलिक्स कितने हैं, बीटा प्लेटेड शीट्स के अरेंजमेंट कितने हैं, वो हमें अच्छे से विजुलाइज हो सकते हैं। तो 3 डायमेंशनली, 4 डायमेंशनली स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडिविजुअल, मैं कर्सर को जैसे यहाँ पे रखूँगा तो आपको शो होगा कि इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स की पोजीशंस आपको शो हो रही होगी। मैं इसको जूम करता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर इस कर्सर को रखा तो हमें पता लगेगा कि कौन सा एमिनो एसिड है और कौन सी चेन है और कौन सी पोजीशन पे वो एमिनो एसिड है। वो इन्फॉर्मेशन भी आज हम 3D स्ट्रक्चर को विजुलाइज करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स के 3 लेटर एब्रीविएशंस आपको शो हो रहे होंगे, शो हो रहे हैं आपको एमिनो एसिड्स के एब्रीविएशंस। LEU, ल्यूसीन 81 नंबर का एमिनो एसिड है। B चेन है, कार्बन उसका एटम है, आपको शो हो रहे होंगे। शो हो रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं आप आपके लैपटॉप में या मोबाइल में या कंप्यूटर में। 3D विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं।
उन 3D विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद से आप स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर पाएंगे। आपको मैंने कुछ नाम बताए थे, SPDBV, CN3D, जेमॉल, रेसमॉल, पाइमॉल, ये 3D विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, टूल्स हैं जिनको आप डाउनलोड करें और आप इन डेटाबेस में जा कर के आप इनकी PDB ID को डाउनलोड करें। जैसे अगर आप जैसे ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डेवलपमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर डॉक करवाना पड़ेगा मॉलिक्यूल को। तो डॉक करवाने के लिए स्पेशली आपको नीड होगी प्रोटीन डेटा बैंक की, और प्रोटीन डेटा बैंक में जब हम स्ट्रक्चर को आइसोलेट करेंगे तो PDB ID में इसको हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड फाइल्स। डाउनलोड फाइल्स में आप जाएं, डाउनलोड फाइल्स में आप जाएंगे तो यहां पर PDB फॉर्मेट आपको शो हो रहा होगा। इस PDB फॉर्मेट को आप डाउनलोड करें, यह आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको आप जो भी हमारा विजुअलाइजेशन टूल है, चाहे वो SPDBV हो, चाहे CN3D हो, चाहे पाइमॉल हो, उनके थ्रू वो हमसे PDB ID मांगेगा और उस PDB ID को हम जैसे ही वहाँ पर डालेंगे तो 3D विजुअलाइजेशन हमारा उस प्रोटीन का या उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमारे पास विजुअलाइज हो जाएगा। PDB ID को हमको डाउनलोड करके और फिर शो करना पड़ेगा। ये PDB डेटाबेस एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है। आप यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को आप विजुलाइज कर सकते हैं, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं और साथ में विजुलाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी में एक बार मैं फिर से आपको शो करना चाहता हूं कि जिन जिन डेटाबेसेस को हमने देखा है उन डेटाबेस से इंफॉर्मेशन कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। इसके बाद मैं सीक्वेंस अलाइनमेंट के सॉफ्टवेयर पे भी चलूँगा क्योंकि उसमें हमें समय लगेगा। तो अभी तक हमने जो सॉफ्टवेयर्स लिए हैं, जो डेटाबेसेस लिए हैं, उसमें सबसे पहला तो हमने NCBI को ओपन किया था। NCBI जो कि एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल डेटाबेस है और इस डेटाबेस से हमें जितनी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हों, चाहे स्ट्रक्चर्स हों, चाहे प्रोटीन सीक्वेंसेस हों, चाहे स्ट्रक्चर्स हों, चाहे रिसर्च आर्टिकल्स हों, रिसर्च आपको जो जिस भी टॉपिक पे करना है उससे रिलेटेड आपको पूरा डिजिटल डेटा आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ऑल डेटाबेस इंटरेज के फॉर्म में यहाँ पर। और अभी जैसे मैं ब्लास्ट के लिए मैं आगे पहुँचूँगा। ब्लास्ट जो कि एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है, तो ब्लास्ट कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं क्योंकि हमें इन सभी प्रोसेसेस को, इन सभी डेटाबेसेस को फिर से रन आउट करवाना पड़ेगा ब्लास्ट पे जाने के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको अभी बताया, ऑल डेटाबेस में आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करेंगे। सर्च तो ये ग्लोबल क्वेरी या फिर जी क्वेरी भी कहते हैं, या इंटरेज के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको रिट्रीव होकर के आएगी। अलग अलग डिवीज़न, आप इन डिवीज़न्स को देख पा रहे हैं सभी। ये डिवीज़न्स आप वर्कशॉप होने के बाद आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और भविष्य में आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर एक लिटरेचर में आपको मैं बुक शेल्फ भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक शेल्फ है ये डिजिटल लाइब्रेरी है।
जैसे हमारे इंस्टीट्यूट्स की या हमारे कॉलेजेस की लाइब्रेरी में हमें इंडिविजुअल हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बुक्स मिलती हैं, बट यहाँ पर अगर आप NCBI में जाते हैं और इस NCBI को सर्च करते हैं ऑल डेटाबेस के फॉर्म में, तो आपको लिटरेचर में बुक शेल्फ मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि H1N1 से रिलेटेड इनके पास जो रिसर्च से, और देखिए कंप्लीटली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है वो एक रिसर्च फील्ड है, तो आपको रिसर्च फील्ड से रिलेटेड इंडिविजुअल टॉपिक पे आपको बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। तो आप ज़रूर एक्सेस करें जो अपना भविष्य रिसर्च में बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पूरा डिजिटल डेटा जो है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिलेगा। सपोज अगर आपने कैंसर टाइप किया या एनीथिंग एल्स, कोई भी डिसीज़ को लेकर के भी टाइप करते हैं, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिजिटल डेटा के फॉर्म में आपको रिट्रीव होकर के आएगी। क्योंकि इंडिविजुअल हमारे इंस्टीट्यूट्स की लाइब्रेरी में आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बुक्स मिलेगी, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिसर्च के, वहाँ से आपको इंक्लूडिंग जो रिसर्च डेटा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी इवन अभी एट प्रेजेंट कोरोना जो चल रहा है उससे रिलेटेड भी अगर आप टाइप करके उस पर रिसर्च का काम करना चाहें, वो भी आपको शो आउट होगा। कोरोना से रिलेटेड काफ़ी डेटा आज हमारे पास प्रेजेंट है, और डिजिटल डेटा की मदद से ही लगभग हम कोरोना को काफ़ी जीनोमिक लेवल पे हम उसकी सीक्वेंसिंग को लेकर के और काफ़ी रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट करे हैं। तो कोरोना से रिलेटेड हो या कोई भी इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल टर्म में आप जनरेट कर सकते हैं। देन इसी NCBI का इंटरेज और इसी NCBI का जो जन बैंक है, जो कि एक कम्प्लीटली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, वो आपको शो हुआ होगा। मैंने आपको दिखाया था जन बैंक, और इसी जन बैंक के अंतर्गत आपने देखा होगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को। अब हम जब सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए जाएंगे ब्लास्ट टूल पर, तब हमें नीड होगी या तो एक्सेशन नंबर्स की या फिर उनकी डिजिटल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। और आपको मैंने फास्टा, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उस फास्टा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी मैंने आपको दिखाया था, जो कि कैपिटल लेटर्स में अरेंज हो जाती हैं पूरी कंप्लीटली सीक्वेंस, और सिर्फ उस सीक्वेंस का जो टाइटल है, जो डेफिनेशन है विथ एक्सेशन नंबर, वही शो होता है। तो अभी हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हम देख चुके हैं, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस को भी हमने फाइंड आउट करा है, उस डेटाबेस में जाकर के हमने सीक्वेंसेस को देखा है। साथ में हमने PDB को अभी देखा, RCSB PDB जो कि बहुत अच्छा डेटाबेस है, 3D स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन डेटाबेस है। DDBJ हमने देखा, EMBL देखा, PubMed आपको मैंने अभी रिसर्च आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग दिखाया है, जन बैंक, इंटरेज और NCBI। ये डिवीज़न आपके अभी क्लियर होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, वो जो आपने EMBL में टेक्स्ट फॉर्मेट एक्सेस करना बताया था, जबकि सेकंड वाली टैब में है, तो आप एक बार वापस बता देंगे। ओके फॉलो नहीं कर रही थी। ओके। ये EMBL में जो फाइल फॉर्मेट है वो इस तरह से दिखेगा। शो हो रहा है आपको? सर, वो आपने कैसे ओके, कैसे एक्सेस करा है? ठीक है, मैं आपको फिर से लेकर के चल रहा हूँ। EMBL पर पहुँचे, वेब पेज ओपन हुआ, फिर इस वेब पेज में जो EMBL EBI है वो आपको शो होगा। ये शो हो रहा है अब वेब पेज पे। देन इसके बाद यहाँ पर आप जो भी जिस भी मॉलिक्यूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप टाइप करके फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो टाइप करके फाइंड आउट करने के लिए उसको टाइप करें।
देन फिल्टर योर रिजल्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर एक्चुअल में ये भी एक कंप्लीट बायोलॉजिकल डेटाबेस है। एनसीबीआई को ऑर्गेनाइज मेंटेन करने का काम एनआईएच और एनएलएम कर रहे हैं, जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा, और अमेरिका एक अलग कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन बना हुआ है, उन्होंने इस ईएमबीएल के अलग अलग रिसर्च डिवीज़न है उसमें इसको इंक्लूड किया है उन्होंने। तो इनके जो मेंबर स्टेट्स हैं उन मेंबर स्टेट्स के साथ रह करके इन्होंने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया है, और उस डिज़ाइन मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में हिंगस्टन जो है वहाँ से ये ईएमबीएल ईबीआई को प्रोड्यूस कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड में आप जाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करें। न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करने के बाद आपको यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव्स में जाना है। तो जनरली जो भी सीक्वेंसेस हैं वो आपको ईएनए के फॉर्म में शो हो जाएगी। और ये जो फाइल फॉर्मेट है ईएमबीएल का, ये फाइल फॉर्मेट एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट है। ये आप ये देख पा रहे होंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट में ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीटली व्यू होगी। ये ईएनए जो ओपन हुआ था, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव, या डायरेक्टली आप ईएनए पे जाकर के भी आप जुड़ सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस में। शो हो रहा होगा आपको। सर टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे एक्सेस करेंगे यहाँ से? हाँ ये इस वाले देखिए, वेब पेज। हाँ देखिए, ये आप गए सबसे पहले ईएनए पे, मतलब ईएनए ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे की ओर जाइए, आप नीचे की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर विथ एक्सेशन नंबर KP747648 एक एक्सेशन नंबर शो हो रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप ईएनए में आ जाएंगे, यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्चीव्स में, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में व्यू एक ऑप्शन है। उस व्यू ऑप्शंस में जाकर के ईएमबीएल पर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, एक कंप्लीट फाइल फॉर्मेट आएगा टेक्स्ट में। हो रहा है शो? यस सर, ओके, थैंक यू। और इसी का अगर आपको फास्टा फॉर्मेट में अगर सीक्वेंस चाहिए तो फास्टा पे आप क्लिक करें तो आपकी जो सीक्वेंस है वो फास्टा फॉर्मेट में आ जाएगी। फास्टा फॉर्मेट में सीक्वेंस शो हो रही है। यस सर। अब जो नेक्स्ट पीडीबी हमने देखा है, डीडीबीजे भी हमने देख लिया है, ईएमबीएल भी देखा है। पबमेड बहुत इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है, आप जितना भी रिसर्च आर्टिकल्स आप पढ़ना चाहें। जन बैंक भी आपको मैंने दिखाया है, इंटरेज एंड देन एनसीबीआई। ये कंप्लीट डेटाबेसेस का पैकेज था, एक कंप्लीट। इनमें अभी हमने सबसे पहले विजुलाइज डेटाबेस में डीएनए सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस को हमने फाइंड आउट किया। मैम अब थोड़ा सा ब्रेक लें कि अभी 1 बजे, ठीक है? हाँ ठीक है, नहीं अभी, हाँ फर्स्ट सेशन का तो हो गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अभी आपको मैंने शो करे हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के बाद का जो मतलब सेशन होगा उसमें आपको सीक्वेंस अलाइनमेंट, ब्लास्ट, फास्टा और क्लस्टर डब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे जा कर के कैसे सीक्वेंस को जनरेट करना है। अब जैसे आपको स्पेशली मैंने सीक्वेंस का जो फॉर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, तो जब हम
अलाइनमेंट के लिए जब हम जाएंगे तो हमें NCBI की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम NCBI के प्लेटफॉर्म पे जाकर के ब्लास्ट परफॉर्म करेंगे। और इस NCBI के प्लेटफॉर्म पे जाकर के ब्लास्ट को हम परफॉर्म जब करेंगे तो हमें ब्लास्ट टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ब्लास्ट पे डायरेक्टली जा कर के आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सेशन में अभी फ़िलहाल में मैंने आपको डेटाबेस विजुलाइज करे हैं एंड देन हेलो ओके। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो है वो है सीक्वेंसेस, उसमें इंडिविजुअली DNA सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। एक कॉन्सेप्ट है नॉन रिडंडेंसी। एक्चुअल में आपने जितने भी डेटाबेस देखे हैं वो DNA सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, ना कि RNA से रिलेटेड हैं। तो जनरली इंटरप्रिटेशन सिंपली है कि DNA में जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन, उसमें सिर्फ RNA में एक लेटर चेंज होता है, थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल आ जाता है। तो उसके लिए एक बड़ा सा डेटाबेस बनाना RNA का, वो एक डेटा रिडंडेंसी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम उसको मतलब डेटाबेस तो बने हैं, बट फिर भी हमारे पास ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनकी मदद से हम DNA की सीक्वेंस को RNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंगल लेटर एब्रीविएशंस जो T को रिप्लेस करके यूरेसिल है, उसको लेकर के हम सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करते हैं। और उसके लिए इंडिविजुअली डेटाबेस यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने जो देखा है वो DNA सीक्वेंस डेटाबेस देखा है, एंड देन DNA के बाद स्पेशली आपके जो स्ट्रक्चर डेटाबेस हैं या प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस हैं वो आपको शो हुए होंगे। तो आपकी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टेप टू स्टेप राइट नोट आपने करा होगा, कैसे विजुलाइज किया जाता है, कैसे स्ट्रक्चर को देखा जाता है, 3 डायमेंशनली कैसे प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं स्ट्रक्चर्स, वो आपने अभी देखा होगा हैंड्स ऑन के थ्रू। स्टेप बाय स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इन्फॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। और एनालिसिस वाला पार्ट हम अब लेने वाले हैं।